Hello students, welcome back to my YouTube class, and in my previous video I have explained you exercise 6.1 question number 4, 5 and 6, and today I will explain you question number 7, 8, 9, 10. So let's move to my class. So students, this is question number 7, and in this question it is given a rectangle of length x and width y, and the rate of change of length is 5 centimeter per minute and rate of change of width is 4 centimeter per minute, right? So we have to calculate the rate of change of perimeter. अब students, अगर perimeter is denoted by p, then what is the perimeter of rectangle? 2x plus y. If length and breadth is given what? X and y, then perimeter is what? 2x plus y, right? Now we have to calculate dp upon dt at given 2 points. X and y are given, and the value of x and y are what? 8 centimeter and 6 centimeter. Means at x equal 8 centimeter and y equals 6 centimeter. At these 2 points we have to calculate dp upon dt, right? So dp upon dt means 2 d upon dt 2x plus y, right? So differentiate this. 2 is constant, so we are taking it outside. So dx upon dt plus dy upon dt. Clear? This dx upon dt is given what? 4 centimeter per minute. 1 minute students. Sorry student, it is dx upon dt is minus 5 centimeter per minute, because it is given it is decreasing. In question it is given it is decreasing. I forget to write this. So dx upon dt is what? Negative. Length is decreasing and breadth is what? Increasing. So it is 4 centimeter per minute. Clear? Now we will put these values here. Minus 5 plus 4. So we will get minus 2. It means what? That rate of change of perimeter at this point, there is no need to put these values because we are not getting any term of x and y. So we are getting this is constant. So rate of change of perimeter is what? minus 2 centimeter per minute. Means जो टोटल perimeter है वो भी हमारे पास में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. क्लियर? ये वैल्यू चेंज इस रेट के साथ में ये जो perimeter है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. क्लियर? In next part, we will calculate the rate of change of area. Means what? dA upon dt, right? At x equal 8 and y equal 6 centimeter, right? So at this point, the what is the area of a rectangle? Area is what? Length into breadth, means xy. So when we will do the differentiation of this, we will do it with the help of u into v, means product of functions formula we will use. So differentiation of x is what? dx upon dt, and y we will write as it is, plus x as it is, then dy upon dt. Clear? Now dx upon dt is given. We will put these values. dx upon dt equal minus 5 and dy upon dt equal 4, and y is 6 centimeter and x is what? 8 centimeter. So we can put these values here. Minus 5 multiply 6 plus 8 multiply 4. Clear? This is 30, 32 and this is 2. So we are getting here dA upon dt at x equal 8 and y equal 6 is 2 centimeter square per minute, right? Here we will write centimeter square because this is area. Clear? So in this question, students, this is question number 8, and in this question it is given that a balloon which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping 9 centimeter cubic centimeter of gas per second. Means dV, rate of change of volume, is given 900 centimeter cube per second. Clear? Now we have to calculate the
rate of change of radius dr upon dt when r equal 15 centimeter. Clear? So how we will solve this question? dv upon dt is given 900 centimeter cube per second. Clear? Now see students, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज व्हाट, हम यहाँ पे वॉल्यूम का जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है दैट फॉर्मूला वी विल यूज हियर. तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब. क्लियर? दिस फॉर्मूला वी विल यूज. नाउ डिफरेंशिएट दिस 4/3 एंड पाई, दिस इज कांस्टेंट, एंड आर क्यूब. डिफरेंशिएशन ऑफ आर क्यूब विथ रेस्पेक्ट टू टी इज फर्स्ट 3r² एंड देन dr अपॉन dt. क्लियर? Now we have to calculate what dr upon dt. हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है. So we will put all the values which we are having. So this value is given 900 equal 4/3 pi, and this is given 3 multiply r square. When we have to find the rate of change of radius when r equal 15. So we will put this value 15 square and this dr upon dt. Clear? Now dr upon dt we will take one side and take these all terms this side. तो 900 multiply by 3 upon 4 pi into 3 into 15 into 15. Clear? So let's calculate it. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो you will get 3 is cancelled with this 3 and 15 this 60 and again this is 4 time, and when this is 1 upon pi. तो rate of change of radius is equal to what? 1 upon pi and this is centimeter per second. तो ये हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा. क्लियर? ओके स्टूडेंट, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10. और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या गिवन है कि देयर इज ए लैडर विच इज केप्ट अलोंग ए वॉल, एंड ये जो लैडर है इसको शिफ्ट करने पे मीन्स ग्राउंड के अलोंग जब शिफ्ट करते हैं तो इसकी हाइट ऑब्वियसली डिक्रीज होती जाएगी, राइट? तो हमें ये गिवन है कि इसका जो रेट ऑफ चेंज है, मतलब आप ये जो ग्राउंड से इसको शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसे करके शिफ्ट कर रहे हैं, ये जो dx रेट ऑफ चेंज ऑफ ये जो लेंथ है, ये डिस्टेंस है, ये हमें 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है. तो हमें ये फाइंड करना है कि जो हाइट dh अपॉन dt, सपोज ये हाइट अगर h है तो हमें dh अपॉन dt फाइंड करना है, राइट? व्हेन x इक्वल 4 सेंटीमीटर. तो स्टूडेंट्स पहले तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. आप ये जो ट्राइंगल हमारे पास में बन रहा है, इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो. तो इन ट्राइंगल ए बी सी आप पाइथागोरस थ्योरम जब लगाओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये AC² इक्वल AB² प्लस BC². ठीक है? हमें क्या फाइंड करना है? h फाइंड करना है. तो h फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास में है 5², ये हमारे पास में h², ये हमारे पास में क्या है x². तो h² हम फाइंड करेंगे तो 5² माइनस x² हो जाएगा, और ये h की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? √3, राइट? तो हमारे पास में h की जो वैल्यू है वो 25 माइनस x² रूट आ जाएगी, राइट? ये हमने h जो है x की फॉर्म में क्यों फाइंड किया स्टूडेंट? क्योंकि हमें यहाँ पे रेट ऑफ चेंज जो गिवन है वो 2x का गिवन है, राइट? तो हमें ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करना है. क्लियर? तो इस x के टर्म्स में फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे. क्लियर? अब देखो स्टूडेंट्स, अब हमें क्या फाइंड करना है, ये dh अपॉन dt फाइंड करना है. तो dh अपॉन dt का मतलब क्या हो गया आपके पास में, d अपॉन dt, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 25 माइनस x². अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है. तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमारे पास में क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो dh अपॉन dt है इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, इसका जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे x की पावर n से, तो यहाँ पे क्या हो गया x की पावर हाफ, तो ये क्या हो जाएगा n(n-1) मीन्स 1/2 n-1. तो ये कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में 25 माइनस x². जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये n-1, तो यहाँ पे हाफ माइनस 1, तो माइनस हाफ आपके पास में बचेगा जो डिनोमिनेटर में आप लिख सकते हो. क्लियर?
अब जब आप इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे, ये जो टर्म आपने जिसको x अज्यूम किया है उसको जब आप फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो 25 का डिफ्रेंशिएशन, ये जब आप इसको dx अपॉन dt आप 25 माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म्स में करोगे तो ये 1/2 √25 माइनस एक्स स्क्वायर, और जब आप इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो 25 तो कांस्टेंट है तो वो जीरो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट -2x और dx अपॉन dt, ये हमारे पास में आएगा। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हो, हमारे पास में जो वैल्यूज है माइनस ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास में माइनस, और ये x की यहाँ पे देखो स्टूडेंट आपको क्या गिवन है x इक्वल 4, आपको क्या फाइंड करना है dh अपॉन dt, dx अपॉन dt की वैल्यू में 2 गिवन है, तो ये जितनी भी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं यहाँ पे हम पुट करेंगे x के प्लेस पे हम पुट करेंगे 4 अपॉन ये √25 माइनस 16 हो जाएगा, 4 स्क्वायर मीन 16, और dx अपॉन dt की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स 2, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये -4 × 2 अपॉन ये स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा आपके पास में 3 आ जाएगा, क्लियर। तो ये -8 अपॉन 3, और इसका जो यूनिट है स्टूडेंट्स वो क्या आएगा आपके पास में, ये हाइट रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट है तो ये मीटर या सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में गिवन है, क्लियर। ये जो माइनस साइन है स्टूडेंट्स ये यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाइट जो वॉल, ये जो हाइट है वॉल का ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में वो पूछ ही रहा है कि हाउ व्हाट इज द रेट ऑफ द चेंज इन डिक्रीजिंग इन वॉल लेंथ ऑफ वॉल, ठीक है। तो आपको डिक्रीजिंग पहले से लिखा हुआ है तो आपको नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब नेगेटिव साइन इज रिप्रेजेंटिंग ओनली दैट। Okay students, so in question number 11 a particle moves along the curve 6y equal x cube plus 2. Find the point on the curve at which y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate, right? तो आपको स्टूडेंट्स गिवन क्या है, एक कर्व गिवन है और इसके x और y कोऑर्डिनेट का रेट ऑफ चेंज आपको गिवन है, मीन्स dy अपॉन dt इक्वल आपको गिवन है 8 टाइम्स ऑफ dx अपॉन dt, क्लियर। तो इसमें आपको पॉइंट्स फाइंड करने स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको इक्वेशन गिवन है इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं पहले, 6y इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2 जो है इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6dy अपॉन dt विद रेस्पेक्ट टू t करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में 3x² और ये dx अपॉन dt, और ये 2 का जब हम करेंगे तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास में dy अपॉन dt और dx अपॉन dt दोनों की वैल्यू, ये जो वैल्यू आपको गिवन है यहाँ से ये वैल्यू हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे यहाँ पे ये 6 dy अपॉन dt के प्लेस पे हम ये पुट कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स ये 8 dx अपॉन dt और ये 3x² dx अपॉन dt। तो स्टूडेंट ये वाली जो टर्म है और ये जो टर्म है ये दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास में क्या बचेगा, ये 48 इक्वल 3x², तो ये x² इक्वल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 16, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी ±4 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास में x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू हमारे पास में आई है ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो जब आप x इक्वल 4 पुट करोगे तो आपके पास में क्या आएगा 6y इक्वल 4 क्यूब प्लस 2, और 4 का क्यूब क्या होता है स्टूडेंट्स 64 प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपके पास में 6y इक्वल 66, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स आपके पास में 11, क्लियर। ऐसे ही जब आप यहाँ पे x इक्वल -4 जब पुट करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, सेम इसी इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो ये आएगा आपके पास में 6y इक्वल -4 क्यूब प्लस 2, तो ये आपके पास में -64 प्लस 2 आ जाएगा, तो ये -62 हो जाएगा, और y की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी -62 अपॉन 6, जब आप सॉल्व करोगे तो ये -31 अपॉन 3 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो y की वैल्यू हमारे पास में ये आ रही है, अगर आप डेसिमल में फाइंड करना चाहते हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इतना ही रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास में जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास में क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स
पॉइंट्स हमारे पास में आएंगे, 8.4 के साथ में हमारे पास में क्या है 411, और एक पॉइंट हमारे पास में आएगा स्टूडेंट्स -4 एंड -31/3। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे पास में इस तरह से आ जाएंगे। Okay students, so again thank you very much for watching me, and if you like my channel then please like it, share it and subscribe it, and if you want to ask any question then you can drop that question in the comment box. I will take your questions. So thank you very much for watching me. Until then, bye bye.